students, welcome in online classes. Dear student, the day before yesterday, both day we have discussed about that partition of Bengal. What was the real motive behind the partition of Bengal by Lord Curzon, and what was the arguments given by Lord Curzon after the partitionized the Bengal. But after that, what is happened? Which movement started by the Indian leader against the partition of Bengal? That is two important topic for this year. In this academic year, means 2021 and 22, that is the two topic only given in your reduced syllabus. Which one? Anti-partition movement, causes of the partition of Bengal. ये तो आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है. Causes of the partition of Bengal. लॉर्ड कर्जन ने क्या causes दिया था partition of Bengal का? आपको पता होगा. Bengal is too long, too big, so the single provincial government cannot rule, and they also give argument the backwardness of Assam. This is the second reason, and also Lord Curzon given to wanted to abolish the famine. So now today we have discussed about that how the Indian nationalists, especially the radical leaders against the partition of Bengal, this topic is known as the anti-partition movement. Under this topic we have see about that the day of mourning. Yesterday this also discussed. The Indian leaders finally started their meeting on 7 August 1905 town hall in Calcutta, and now the people raise the slogan unity of the strength, no partition, boycott the British goods, use of Swadeshi goods, and Vande Mataram. Thereafter, Rabindranath Tagore also wrote his famous national song, My Amar Sonar Bengal, My Golden Bengal. After the partition of Bengal, many of other leaders like that Surendranath Banerjee launched the Vang Bhanga movement, and finally, many of these persons tied to Rakhi to each other, especially Muslim and Hindu. They both are present the unity between them. Muslim, right? Especially the Muslim tied to Rakhi to Hindu, and Muslim and Hindu both are gathered in the river of Ganga and stored bath in the sacred bath in the river Ganga. People tied Rakhi to each other to demonstrate unity among the people. कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट में जो स्टेप लिए गए वो कई सारे थे. जो इंडियन लीडर थे उन लोगों ने स्वदेशी का नारा दिया, बाइकआउट ब्रिटिश गुड्स की बात किया. सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपने देखा कि बंग भंग मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे. रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल सॉन्ग बंगाल के ऊपर लिखा, माई अमर सोनार बंगाल, माई गोल्डन बंगाल. ये सारी चीजें आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल होती हैं, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट का एक पार्ट होता है. थ्रू दिस सिचुएशन, थ्रू दिस टाइम, many types of the festival like the Durga Puja festival, many of the people's gathering in Kali temple in Kali Ghat in Calcutta, and they give the slogans against the foreign articles and against the foreign rule. Finally, reaction of press also criticized. ये भी बहुत important topic है. एक तो आपका आता है कि जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है उसको हम किसके रूप में सेलिब्रेट किए? डे ऑफ मॉर्निंग. डे ऑफ मॉर्निंग का मैंने 9th क्लास में आपको पढ़ाया था. ओके, डे ऑफ मॉर्निंग, MOURING, मॉर्निंग MORING. ओके, डे ऑफ मॉर्निंग. इसके बाद आता है आपका रिएक्शन ऑफ द प्रेस. जो दूसरा था एंटी पार्टीशन मूवमेंट में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो था प्रेस. रिएक्शन ऑफ प्रेस. प्रेस ने क्या किया? Press also criticized the government policy and published the newspaper. Through the newspaper, the press also play a very important role in the anti-partition movement. अब ये बात आती है कि कौन-कौन से प्रेस उस समय थे. बहुत सारे प्रेस हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था प्रेस का वो खास करके बंगाली, एडिटेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी. जो बंगाली प्रेस था, बंगाली न्यूज़पेपर आता था जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा एडिट किया गया था, एंड अमृत बाजार पत्रिका अंडर मोतीलाल घोष. अमृत बाजार पत्रिका
Bengali, that is the two important newspaper, Bengali edited by Surendranath Banerjee and Amrit Bazar Patrika started by Motilal Ghosh. They both press criticized the government's decision, and especially Bengali paper like Sanjeevani and Hitaisi took a lead spreading the anti-partisan feeling. मतलब जो प्रेस था, प्रेस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ 4 प्रेस आते हैं। एक तो ये आता है आपका बंगाली, उसके बाद आपका आता है अमृत बाजार पत्रिका, इसके अलावा आपका आता है संजीवनी और हितैषी। Okay, that is the 4 important newspaper. Those are published against the government policies. Sanjeevani, Hitaisi, Bengali, and Amrit Bazar Patrika. That is a key one. So the press also play a very important role into the anti-partition of Bengal, because through the press criticized the policy of the government and also gathered the objective of the public opinion against the partition. लोगों को ये खबर फैलाकर लोगों की व्यूज को भी लिया, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो प्रेस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद आता है फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन हॉल, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एंटी-पार्टीशन मूवमेंट। क्या है? फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन हॉल। ये क्या था? फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन, आपको बुक में दिया होगा। फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन हॉल क्या था? एक्चुअली आनंद मोहन बोस, जो फेडरेशन हॉल की फाउंडेशन किया गया था वो आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। आनंद मोहन बोस वर्ked political leader led the foundation of Federation Hall in Calcutta, which was to be the symbol of the unity of Eastern and Western Bengal. Anand Mohan Bose established the Federation Hall in Calcutta. Federation Hall is known as a symbol of unity between the Eastern Bengal and the Western Bengal. So that is the 3 important step taken by the Indian leaders and Indian people. Students, you also know the student and the teacher also against the partition of Bengal. Lawyer, doctor and many other writer, scholar, they all are against the partition of Bengal. So they all are the participated themselves in the anti-partition movement against Lord Curzon in the partition of Bengal. That is the 3 important reaction. Day of Mourning celebrate किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। क्या किया गया? डे ऑफ मॉर्निंग सेलिब्रेट किया गया भारत में, शोक दिवस के रूप में जानते हैं। हिंदू मुस्लिम टाइड टू राखी टू ईच अदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। हिंदू ने मुसलमानों के कलाई में और मुसलमानों ने हिंदुओं की कलाई में राखी बांधा, जिसका मतलब क्या था? तो मेंटेन द यूनिटी, टू शो द यूनिटी अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने माई अमर सोनार बंगाल, माई गोल्डन बंगाल को एडिट किया है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स and many of the teachers boycott the British goods and boycott the British institution through the anti-partition movement. So these are steps taken by the anti-partition movement of the Indian people. स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी बुक में दिया होगा इम्पैक्ट ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ एंटी पार्टीशन मूवमेंट का? देखो इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको सिलेबस में ये पॉइंट अब की साल नहीं दिया गया है, सीधे दे दिया गया है मुस्लिम लीग। चैप्टर नंबर 6 होगा, हो सकता है आपके बुक में या इसी में आपके बुक में हो मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग क्या था और मुस्लिम लीग को क्यों बनाया गया है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे मुस्लिम लीग को बनाया कब गया था। मुस्लिम लीग एक्चुअली मिस्टर आगा खान एंड सलीमुल्लाह खान की देन है। मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश बाय आगा खान, और ऑब्लिक में आप सलीमुल्लाह भी लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज फाउंडेड द मुस्लिम लीग एंड व्हाट वाज इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। आप सभी को पता होगा कांग्रेस पार्टी बनने के बाद भारत के मुसलमानों के दिल और दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर कहीं भारत आज़ाद हो गया तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का बशर और मुसलमानों की पॉलिटिकल राइट
कहीं खतरे में ना पड़ जाए। सो प्लीज डोंट माइंड इट। बट उस समय के लोगों की ये विचारधाराएं थी, जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों पार्टीशन ऑफ बंगाल में एक साथ अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़े थे। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने जब पार्टीशन किया, पार्टीशन कर दिया बंगाल का, तो जो वास्तविकता थी वो सामने दिखने लगी। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, Lord Curzon no doubt wanted to divide and rule policy among the Hindu and Muslim, and this is appeared in the 1906. लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया पार्टीशन, किया गया पार्टीशन, भारत में मेन एम क्या था? टू डिवाइड एंड डेवलप द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, और इसी का नतीजा हुआ 1906 में मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट। चलिए इस पर हम बात करते हैं। मुस्लिम लीग, as you know that Muslim League was founded by Salimullah Khan and Aga Khan in 1906. ओके, नाम याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। फाउंडर मेंबर किसका रहता है अक्सर? फाउंडर कौन थे? तो यहाँ पर दो लोगों का नाम आपको लिखना होगा, आगा खान और दूसरे व्यक्ति जो थे वो थे सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग को बनाने के पीछे जो रीजन है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग से रिलेटेड बस दो ही चीज इस बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। फाउंडर मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। आप अपने सिलेबस में देख भी सकते हैं, अगर कहीं कुछ छूट रहा हो तो प्लीज हमसे एक बार आप रिमाइंड करा देंगे। ओके ना, सी दैट एक्चुअली मुस्लिम लीग का जो बर्थ हुआ, जो जन्म हुआ, वो कब हुआ? एक कॉन्सेप्ट आता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, और इंडिया में जो कम्युनलिज्म था वो 1857 से लेकर 1870 तक नहीं देखा गया, लेकिन 1905 के बाद एक ऐसी सिचुएशन बनी कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल राइट को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक होना दिखा। और इसी का नतीजा था कि मुसलमानों ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और इसी पार्टी का नाम दिया गया मुस्लिम लीग। अंग्रेज ऐसा चाहते भी थे कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में टकराव हो, अलग अलग दो पॉलिटिकल पार्टी हों, और इसी का नतीजा था बर्थ ऑफ मुस्लिम लीग। स्टूडेंट, इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन। मुस्लिम लीग क्या था? एक ऑर्गेनाइजेशन था। इट वाज फॉर्म इन 1906। आपको बुक में केवल क्या होगा? नवाब सलीमुल्लाह और ढाका, लेकिन आप दोनों का नाम लिखेंगे अगर फाउंडेड मेंबर पूछता है। आगा खान को भी लिखेंगे और सलीमुल्लाह को भी लिखेंगे। Salimullah of Dhaka with the aim to promote among the Muslim of India a feeling of loyalty to the British government. What was the immediate aim? What was the immediate aim of the Muslim League? To promote the loyalty among the Muslim with the British government. मतलब अंग्रेजों का साथ देने के लिए मुसलमानों के बीच में लॉयल्टी को लाना था। इसका पहला और सबसे इनिशियल एम था। क्या था? टू प्रमोट द loyalty with the British government by the Muslim. That is the first aim of the Muslim League. मुस्लिम लीग को बनाने के पीछे बाद में सर सैयद अहमद खान का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि माउंटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को एस्टैब्लिशमेंट किया किसने? सर सैयद अहमद खान ने 1875 में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आज हम उसको जानते हैं, माउंटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मुस्लिम लीग के जो बारे में आपको दिया है, यहाँ पर हम अगर बात करें तो सबसे पहले आता है फैक्टर प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। वो कौन से रीजन थे जिसकी वजह से भारत में कम्युनिज्म आया? आपको मैं बताया नहीं, सॉरी। कम्युनिज्म का मतलब वो होता है जब कोई व्यक्ति अपनी जाति पाति धर्म और अपनी कम्युनिटी के आधार पर अपने पॉलिटिकल राइट को लेना चाहता है, तो इसे हम बोलते हैं कम्युनिज्म। जब एक विशेष व्यक्ति अपनी विशेष नीति, अपनी विशेष आर्थिक परिस्थिति को रखकर, अपनी जाति पाति धर्म को रखकर जब एक विशेष अधिकार लेना चाहता है, तो इसे हम बोलते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इम्प्लाइज द स्टार्टिंग ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट इन द नेम ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ओन्स कम्युनिटी एंड प्रमोटिंग अगेंस्ट द रियल लेजिटिमेसी ऑफ द एडवांटेज ऑफ एंजॉयड बाय द कम्युनिस्ट। मतलब अपने धर्म, अपने जाति, अपने समुदाय के लिए जब कोई सोचता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता है, तो ये कहलाता है कम्युनिज्म। और ऐसा ही भारत में दिखा आफ्टर 1905। कम्युनिज्म का ग्रोथ क्यों हुआ? क्या रीजन था जिसकी वजह से मुस्लिम लीग सामने आई? तो सबसे पहला फैक्टर था ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। द फर्स्ट and the most important policy for the formation of the Muslim League was that to divide and rule policy. Those are introduced by the government. Understand? Okay. Now, the Britishers, when the Britishers come to India, before the Britishers, India was controlled and governed by the Mughal ruler. The Mughal was considered himself as a Muslim
and they rule. So the Indian Muslim always try to do that. कभी हम एक रूलर थे और आज हम कांग्रेस के अंडर में काम कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के अंडर में काम ना करना और अपनी पॉलिटिकल राइट को, अपनी चीज़ों को खुद बनाने के लिए जो अंग्रेजों ने चाल चली थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसका फायदा मिला अंग्रेजों को कब? जब मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हो गया तब। Now you can see here the government ban on the Congress as a Hindu movement and encourage the upper class Muslim to start their own separate organization against the Congress. मुसलमानों के बीच में अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि मुसलमानों ने अंग्रेजों में जो हायर क्लास के लोग थे, अंग्रेजों ने जो हायर क्लास के मुस्लिम थे उनको मोटिवेट किया कि आप अपनी पॉलिटिकल राइट को अगर चाहते हो, आप अपने अधिकार को चाहते हो भारत में, अगर आप कांग्रेस के साथ काम नहीं करना चाहते हो तो आपको एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। और ये क्या करने के लिए किया गया था? टू डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज्य करो। इसके लिए अंग्रेजों ने मोटिवेट किया किसको? मुसलमानों को। एंड फाइनली द मुस्लिम मेजॉरिटी always feeling that we never want to do any work under the Congress because the maximum member of the Congress they all are follow the religion of Hinduism। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर भी बन चुका था कि जो कांग्रेस थी उसके जो जितने भी लीडर थे लगभग सभी हिंदू थे। और हाँ, एक और बहुत बड़ा लीडर था, आपने देखा होगा, बाल गंगाधर तिलक ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के पहले जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे फेस्टिवल के थ्रू भारत को यूनिटी में लाने का कोशिश किया। जैसे कौन सा फेस्टिवल था भाई, बताइए आप लोग। आई होप दैट आपको पता होगा, अभी पहले मैंने डिस्कस किया है। गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, दे आल्सो स्टार्टेड द लाठी एंड अखाड़ा क्लब। ये सारे फेस्टिवल, ये सारे जो वर्क थे, ये सारे हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे। इससे मुसलमानों को एक डाउट होने लगा कि जो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं वो लीड करने वाले लोग अपने हथियार क्या बना रहे हैं? हिंदू मूवमेंट की चीजों को, फेस्टिवल को अपने हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं। और अगर ये देश आजाद होता है, अंग्रेज हमें छोड़ के जाते हैं, तो नो डाउट हमारे अधिकार, हमारी बातें कोई भी नहीं सुनेगा। और इसी का नतीजा था कि मुस्लिम लीग का रूल 1906 में सामने आया। क्लियर? आई होप दैट इट इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल इज आल्सो रीजन, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आल्सो रीजन, एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम लीग इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। आप सभी को पता होगा जो मुस्लिम सोसाइटी थी 1906 और 7 के आसपास, मुस्लिम सोसाइटी में एजुकेशन की जो परसेंटेज था वो बहुत ही कम था। और मुसलमान ये चाहते थे कि अगर हमें अपने कंडीशन को इम्प्रूव करना है, अगर हमें अपनी पॉलिटिकल राइट को लेना है, तो हमें पहले एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा। और ये तभी संभव है जब हम अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना दें। So that is the first reason. What was the first reason for the formation of the Muslim League? British policy divide and rule. Second, educational improvement and economical improvement. कौन चाहता था? मुस्लिम। इसकी वजह से वो पॉलिटिकल पार्टी अलग बनाना चाहते थे। एंड रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के बैकवर्डनेस और खास करके एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश किया अलीगढ़ में। लेकिन ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में जिसका नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया, इस कॉलेज में मुस्लिम लोगों को तो शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उनके पॉलिटिकल राइट के बारे में जो शिक्षा दी गई वो कहीं ना कहीं भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक गैप क्रिएट करता चला गया। सो रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। एंड देन आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, यू नो वेरी वेल, in partition of Bengal, after the partition of Bengal, Lord Curzon real motive to divide and rule policy among the Hindu and Muslim. So partition of Bengal is also a reason for the growth of Muslim League. So these all things are the main important causes of the formation of the Muslim League. The student now एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक पूछा जाता है और यही आएगा भी एग्जाम में भी, अगर पूछता है तो यही आएगा, फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। एनी 2 or 3 कॉजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, केवल 2 या 3 चीज, जैसे फाउंडेशन पूछ लिया, कॉजेज आपसे पूछ लिया, राइट एनी 2 कॉजेज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। व्हेन वाज मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश एंड वेयर, कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था भाई? ढाका में हुआ था। किसने किया था?
आगा खान एंड सलीमुल्लाह खान, दे बोथ आर द लीडर एंड फाउंडर मेंबर। इसके बाद कब हुआ था? 1906 में हुआ था। इसके कॉजेज क्या थे? तो बहुत सारे कॉजेज हैं। पहले ब्रिटिश पॉलिसी ही थी, ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। और क्या था? इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कॉज। और क्या था? रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान, माउंटा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो एस्टेब्लिश किए थे, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस भी एक रीजन था। तो ये सारे कई सारे कॉजेज हैं, आप बुक में देख सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इससे, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को बनाने के लिए क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे जब इसको लाया गया? देखो, मुस्लिम लीग का डिमांड जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव था वो पहला ये था, आपकी बुक में है, बहुत आराम से पढ़िएगा, केवल 5 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से कोई 4 आपको हमेशा तैयार रखना होगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था मुस्लिम लीग का? टू प्रमोट एमंग्स द इंडियन मुस्लिम द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बहुत सही। टू प्रमोट द लॉयल्टी किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। अंग्रेजों के प्रति मुसलमानों को वफादार बनाना ही पहला एम था। मैंने पहले भी बताया है आपको, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ द मुस्लिम लीग टू प्रमोट द लॉयल्टी विथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एमंग द मुस्लिम। क्लियर? सेकंड पॉइंट, टू प्रोटेक्ट द एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया। यस, ये दूसरा था। सेकंड एम, टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट ऑफ द मुस्लिम्स। भारत में रह रहे मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार मिले, इसके लिए भी इसको बनाया गया था। थर्ड पॉइंट, आई होप दैट क्लियर। थर्ड पॉइंट, टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन। फ्रेंडली रिलेशन कैसा? किसके साथ? बिटवीन द मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। अदर कम्युनिटीज लिखा बेटा, ये मत समझिएगा कि प्रमोट द फ्रेंडशिप विथ अदर कम्युनिटीज, जिसमें हिंदू भी आ जाएंगे, नहीं, हिंदू नहीं थे। अदर कम्युनिटीज मतलब जिनकी संख्या बहुत कम थी, लाइक दैट जैनिज्म, सिखिज्म मानने वाले लोग, क्रिश्चियन मानने वाले लोग, इनके साथ इनका क्या फंडा था कि इनके साथ क्या रखो? मित्रता रखो। मतलब टू डेवलप द फ्रेंडशिप एमंग द माइनर एंड मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया एंड टू प्रिवेंट द राइज ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन देम विदाउट एडवर्सली अफेक्टेड द एबव मेंशन ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद क्या था? चौथा पॉइंट था टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम। मुसलमानों को हर तरह से सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना। दैट इज द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू डेवलप द सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द मुस्लिम। दैट इज द 4 एम्स ऑफ द मुस्लिम लीग। एंड लास्ट वन, टू सिक्योर अ राइटफुल प्लेस फॉर द मुस्लिम इन द इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। मुसलमानों को एक सिक्योर प्लेस, एक राइटफुल प्लेस दिया जाए, किसको? मुस्लिम को। कहां पर? इंडियन सोसाइटी में और इकोनॉमी में। आई होप दैट क्लियर। दैट इज द लास्ट 5th पॉइंट ऑफ द मुस्लिम लीग। बेटा चैप्टर फिनिश्ड। नाउ वी आर इंटर इनटू द सेकंड पार्ट। आपकी बुक में अगर लखनऊ पैक्ट दिया होगा, होम रूल लीग दिया होगा, तो शायद इसको आप सिलेबस से मैच करा लीजिएगा। ये दोनों चैप्टर सब नहीं है, लखनऊ पैक्ट को खत्म कर दिया गया है। अब हम सीधे एंट्री करेंगे मास फेज, सेकंड मास फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड रोल ऑफ महात्मा गांधी फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। थैंक यू।